Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. In previous lab we learned how to install the VMware, and in VMware in a virtual machine we install Windows XP, the operating system, and after the installation of operating system we installed the Code Composer Studio over it. We see the overview of the DSK C6713, and today we will work with the Code Composer Studio. We see how we can make a project in a Code Composer Studio and how we can run it. We can burn it over the C6713 DSK. However, I don't have physical DSK with me now, but I will show you the whole procedure, how to debug the code, how to burn the code, and how to make the DSK kit run that code. We have three programming examples introduced here to show some features of CCS. CCS stands for Code Composer Studio, and the DSK board, Digital DSP Starter Kit board. The aim of these examples is to enable you to become familiar with both the software and hardware tools that you can use. It is strongly suggested that you complete these three examples before proceeding further. The three examples will describe assuming that a C6713 DSK is being used, because in our campus we have these C6713 DSK. Okay, the first example is sine wave generation using 8 points with dip switch control. When we push the dip switch, the lights becomes on and off, and the blinking of light is with the sine wave. This example generates a sinusoidal analog output waveform using a table lookup method. More importantly, it illustrates some of the features of the CCS for editing source file, building a project, accessing the code generation tool, and running the program on C6713 processor. The C source file sine8_led.c is listed below. We have code of this sine8 LED. First, we will go with the program description. The operation of sine8 LED.c is as follows. An array sine table for 8 16-bit signed integers is declared and initialized to count 8 samples of exactly one cycle of a sinusoid. The value of that sine_table I is equal to 1000 sine 2 pi by 8 for I is equal to 1, 2, 3 up to 7. Within the function main calls the function compole DSK C6713_LED initialization routine and DSK C6713_dip initialization routine for activating the dip switches and LED over the DSK board. The AIC23 codec on the board of the DSK and the two multi-channel buffered serial ports MCSBSP multi-channel buffer serial ports on C6713 processors. Function compole defined in the file C6713DSK initialization.c and function DSK C6713_LED initialization and _dip initialization are supplied with the board support library BSL file DSK C6713.bsl.lib. The program statement while one within the function main creates an infinite loop. अच्छा, सबसे पहले हम इसके प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन पे आते हैं. हम
3 एग्जांपल्स से गो थ्रू करेंगे। ठीक है, हम इन एग्जांपल्स को रन करेंगे, जनरेट करेंगे कोड कंपोजर स्टूडियो के अंदर, इनको रन करेंगे, इसमें से देखेंगे कोई एरर नहीं है या क्या किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं कोड कंपोजर स्टूडियो में, ताकि सारा कुछ आप DSP प्रोसेसर के ऊपर चला सको। तो अभी जो एग्जांपल में बात हो रही है साइन वेव जनरेशन की, ठीक है, इसका नाम जो इसकी सोर्स फाइल है, सी की सोर्स फाइल है, वो sin8_led.c फाइल है। ठीक है, इसमें हम लोग जो साइन वेव जनरेट कर रहे हैं वो इस प्रोसीजर से कर रहे हैं, लूप के थ्रू करेंगे। एक लूप 1 से 8 तक 7 तक जा रहा है और इसमें आई की वैल्यू से यहाँ पे आपके पास 8 वैल्यूज जनरेट होंगी और ये 8 वैल्यूज जो है वो साइनोसाइड का एक साइकिल कंप्लीट एक साइकिल बनाएंगी। हर एक साइकिल के बाद फिर, क्योंकि साइनोसाइडल सिग्नल्स पीरियोडिक होते हैं, फिर ये दोबारा आपके पास रन होगी। इसके लिए हमें LEDs चाहिए, बोर्ड के ऊपर हमने LED और डिप स्विचेस को यूज़ करना है। तो डिप स्विचेस और LED के लिए जो इनिशियलाइजेशन फाइल्स हैं वो बोर्ड की लाइब्रेरी सपोर्ट फंक्शन लाइब्रेरीज में होती हैं, जो कि आपके पास इस फाइल में है। इस फाइल अभी सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, बाद में इन फाइल्स को हम कैसे प्रोजेक्ट में ऐड करवाते हो उसकी हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, इसी तरह अच्छा, अब प्रोग्राम वाइल 1 का मतलब होता है इन्फिनिट लूप, एक इन्फिनिट लूप लगाएंगे। ठीक है, और स्विच 0 को हम टेस्ट करेंगे। अगर हम इस स्विच 0 को प्रेस करेंगे तो LED 0 जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, और ऑन ऑफ होना शुरू करेगी, टेबल के अंदर जो वैल्यूज है उस हिसाब से वो ब्लिंकिंग शुरू कर देगी। ठीक है, sign table will be automatically a sinusoidal analog output waveform will be generated via the left hand channel of AIC23 codec and the line output and headphone sockets। ठीक है, अब ये मेरे पास कोड है। ठीक है, कोडेक सपोर्ट की फाइल जो C6713_AIC23.h इंक्लूड करवाएंगे। सैम्पलिंग रेट है fs अनसाइंड इंटीजर 32 बिट इंटीजर fs इज इक्वल टू fs आपके पास वेरिएबल है, ये वेरिएबल की डेटा टाइप है। ठीक है, ये आप इसका फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, 8 किलोहर्ट्ज का आप सैम्पलिंग रेट सेट कर रहे हो। इसी तरह माइक को डिफाइन कर दिया और हम लोगों ने इनपुट लाइन को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये मेमोरी के अंदर माइक से जो इनपुट आएगी वो इस एड्रेस पे मिलेगी और जो लाइन इनपुट लाइन से इनपुट आएगी वो इस एड्रेस पे मिलेगी। इसी तरह 16 अनसाइंड इनपुट सोर्स आप डिफाइन कर रहे हो कि इनपुट सोर्स आप माइक को रख रहे हो। आपने लूप लेंथ का वेरिएबल एक बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर आपने 8 वैल्यू रखी है। शॉर्ट लूप इंडेक्स 0, ठीक, गेन आपने 10 रखी है। शॉर्ट अंडरस्कोर साइन लूप लेंथ इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे वो 8 जो वैल्यूज जनरेट हुई हैं हमने वो वैल्यूज लिख दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 वैल्यूज हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं, सॉरी, ये 8 वैल्यूज हैं जो एक पूरे साइनोसाइड में चलेंगी। ये वैल्यूज डिफाइन करने के बाद कॉम अंडरस्कोर पोल, हमारे पास DSP किट के अंदर जब भी कोई हम काम करवाते हैं तो हम ये बफर मेन सीरियल पोर्ट जो यूज़ करते हैं, इसके 2 मेथड्स हैं, एक पोलिंग मेथड है और एक और दूसरा मेथड है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पोलिंग मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है कि आप अब हम लोग LEDs को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, डिप स्विचेस को इनिशियलाइज करवा रहे हैं और ये इन्फिनिट लूप के अंदर आ रहे हैं। इस इन्फिनिट लूप के अंदर आपके पास अगर डिप स्विच 0 प्रेस है तो ये सारा कुछ होगा। ठीक है, LED ऑन होगी। ठीक, आउटपुट के ऊपर आपके पास साइन टेबल साइन की जो वैल्यू आ रही है वो मल्टीप्लाई बाय गेन आउटपुट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, आउटपुट लाइन जो हमने डिफाइन की हुई है उसके ऊपर आ जाएगी। अगर लूप लाइन से दोबारा तो रीसेट लूप इंडेक्स को 0 करके दोबारा से रीसेट करें, और अगर वो स्विच ऑफ है तो आपके पास एग्जिट कर जाए, प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ वाइल लूप
और एलईडी को ऑफ करेगा और वाइल लूप को ऑफ करेगा और एग्जिट कर जाएगा। वाइल वन की वजह से बार बार ये प्रोग्राम आपके पास रन होता रहेगा, ठीक है, ये वाला वाइल चलता रहेगा, जबकि ये वाला जो आपके पास इफ की कंडीशंस और जब रन होंगी तो फिर आपके पास ये कंडीशंस आके आपके पास चलती जाएंगी, ठीक है। अब ये इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन थी। अब हम देखते हैं कि हमने कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कि हम कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे उसकी फाइल्स को ऐड करेंगे, कैसे आप चीज़ों को देखोगे, ठीक है। डिलीट द एग्जिस्टिंग, हम लोगों ने सारा कुछ डिलीट कर दिया। हम शुरू से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डबल क्लिकिंग कोड कंपोजर स्टूडियो को ओपन करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास ये सेटअप आ रहा है, इसको तो मैं हटा देता हूँ। ये मैंने कोड कंपोजर स्टूडियो को ओपन किया। फिलहाल अभी हमारे पास किट नहीं अटैच है तो मैं इसको इग्नोर पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास कोड कंपोजर स्टूडियो बन गया, ठीक है। कोड कंपोजर स्टूडियो ओपन हो गया। अब न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम साइन अंडरस्कोर ये करते हैं, रखना है साइन अंडरस्कोर साइन 8 अंडरस्कोर LED डॉट pgt। और इस प्रोजेक्ट को हम ये फिगर में आके देखते हैं कि प्रोजेक्ट नाम, प्रोजेक्ट की लोकेशन, प्रोजेक्ट की टाइप डॉट आउट और C67 फैमिली के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो इसको मैं यहाँ से फाइल में गया, न्यू प्रोजेक्ट में आया, न्यू प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैंने साइन 8 अंडरस्कोर LED, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल। और यहाँ से फैमिली मैंने 320C67XX रख ली है। अब मैं इस पर फिनिश पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है। Add source file sin8 LED C to project sin8 LED.c is the top level C source file containing the definition function main. The source file is stored in and must be added, ठीक है। अब हम लोगों ने वो सोर्स फाइल ऐड करनी है, ठीक है। सबसे तो सोर्स फाइल में ऐड करने के लिए मैं इधर आता हूँ, यहाँ सोर्स में किया, ठीक है। ऐड फाइल टू प्रोजेक्ट। अगर मेरे पास ये पहले से कहीं पे पड़ी हुई है फाइल तो मैं इसको यहाँ पे बना सकता हूँ, वरना यहाँ पे मैं न्यू सोर्स फाइल भी जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये न्यू सोर्स फाइल मैंने जनरेट की है और जो मेरे पास कोड था ये सारा, उसको मैं कॉपी करके इस सोर्स फाइल में कॉपी नहीं हुआ शायद, कॉपी, ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है, ठीक है। डबल \c के अंदर कमेंट के लिए होता है। यहाँ तक मैंने ये कॉपी और ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास पूरी सोर्स फाइल बन गई है। इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। सेव मैंने वो जहाँ मेरे पास ये माय प्रोजेक्ट के अंदर sin8 LED पड़ा हुआ है, यहीं पे मैं sin8 LED और इसको मैं C फाइल के तौर पे देता हूँ, ठीक है। C ये सोर्स फाइल है, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने सोर्स में ऐड सोर्स,
सॉरी, इसको विथ एक्सटेंशन सेव करना था। फाइल सेव एज साइनेट डॉट सी सेव, और अब मैं यहाँ से इसको मैंने प्रोजेक्ट के अंदर कर दिया। इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ये साइनेट LED अंडरस्कोर सी इसकी सोर्स फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड सोर्स फाइल टू द प्रोजेक्ट, ठीक है, कंटेनिंग द डेफिनेशन फंक्शन मेन फंक्शन आ रहा होगा सबसे पहले। आप ऊपर अगर जाके देखो तो ये वॉइड मेन आ रहा है। इससे पहले हम लोग फाइल्स, हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों को पता है। हम लोगों ने सी में ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, ये सारा कुछ हम लोगों को पता है, ठीक है। डॉट सी या डॉट CCC, ये तीन इस फॉर्म में आपके पास आएंगी, ठीक है। तो सोर्स फाइल में मेरे पास ये एक डॉट सी आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को C6713 डिस्क इनिशियलाइजेशन डॉट सी को ऐड करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक, ताकि हमारे पास जो कॉम पोल के मेथड है और आउटपुट लेफ्ट सैंपल का मेथड है ये चल सके। अब ये फाइल आपको किस जगह से मिलेगी? ये फाइल आपको इस पाथ के ऊपर मिलेगी, ठीक है। सेलेक्ट प्रोजेक्ट, ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट एंड लुक फॉर द फाइल टाइप सी, ठीक है। ये अब हम जाते हैं, ठीक है। हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट पे किया, सी पे आ गए, ठीक है। अब पाथ देखते हैं। जो पाथ हमें गिवन है वो है CCS स्टूडियो के अंदर माय प्रोजेक्ट्स के अंदर सपोर्ट का फोल्डर है, ठीक है। मैं ऊपर जाता हूँ, ये माय प्रोजेक्ट्स आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट का फोल्डर नहीं मिल रहा, एक मिनट। बिन के अंदर अच्छा, ये सॉरी, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है ये फाइल्स, हम लोगों को डाउनलोड करनी पड़ती हैं। इस फाइल्स का आपको मैं लिंक दे दूंगा। मैंने अभी यहाँ पे ये सपोर्ट का फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब इसमें से जो जो फाइल्स हमें चाहिए होंगी वो मैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल में कॉपी करके वहीं से इसको चला दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करता हूँ, ठीक आ गया। इधर से मैं माय प्रोजेक्ट्स का जो फोल्डर था मैं इसमें आ गया, और ये वैसे सपोर्ट का फोल्डर हम डायरेक्ट इधर भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। माय प्रोजेक्ट्स के अंदर सपोर्ट फाइल्स का फोल्डर होना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। ये सपोर्ट के फोल्डर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। ये सारी सपोर्ट फाइल्स हैं जो हमें DSK C6713 के साथ चाहिए होती हैं। तो अभी हम मैनुअल में देखते हैं। तो जो पहली फाइल आपको ऐड करवानी है वो डिस्क इनिशियलाइजेशन डॉट सी है, ठीक है। डिस्क इनिशियलाइजेशन डॉट सी ये फाइल है। इसको मैं डबल क्लिक करके अगर ओपन करूं तो मेरे पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इंक्लूड फंक्शंस फ्रॉम TI। इसके अंदर जो मेन फंक्शंस है वो है। तो मैं इस फाइल को कॉपी करके जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है मैं उसके अंदर ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ से मैं कोड कंपोजर स्टूडियो में गया, यहाँ से मैंने ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और ये मेरे पास C6713 डिस्क इनिशियलाइजेशन आ जाएगी। उसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ये सोर्स फाइल के अंदर आ रही है, ठीक है। ये साइनेट LED है और ये आपके पास दूसरी डिस्क इनिशियलाइजेशन डॉट सी आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो फाइल हमें चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट जो फाइल हमें चाहिए वो वेक्टर पोल अंडरस्कोर ASM है, ठीक है। अब वेक्टर पोल ASM contains interrupt service table for C6713. The source file is located again in support folder.
select project, add file and look for the type ASM. हमने ये vectorpol.asm को देखना है, तो मैं अगेन सपोर्ट के फोल्डर में से मैं ये वेक्टर इंटरप्ट है और ये vectorpol asm फाइल है, इसको मैंने कॉपी किया, मैं अपने मेन प्रोजेक्ट फोल्डर में आ गया और यहाँ से मैंने दोबारा से ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट किया। यहाँ से अब मुझे ये ASM फाइल में आ गया और ये vectorpol.asm मैंने ओपन की, तो मेरे पास ये vectorpol.asm ऐड हो गई है। ठीक है, इसके बाद vectorpol.asm को ऐड करवाने के बाद हमारे पास ये कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं, इनको हमने कॉपी करना है। ठीक है, ये vectorpol ASM हमने ऐड फाइल कर ली। अब हम ये सपोर्ट फाइल्स RTS 6700 lib, DSK BSL और ये फाइल्स, 3 फाइल्स हम लोगों को ऐड करवानी है। ये कहाँ पे आपको मिलेंगी? ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिलेंगी और आपने इसी पाथ से इन फाइल्स को ऐड करवाना है। अदरवाइज ये फाइल्स आपके पास अगर आप यहाँ से इसको ऐड नहीं करवाते हो तो ये आपके पास प्रोजेक्ट को ये रन नहीं करेंगे, ये एरर जनरेट करेंगी। ठीक है, ये लाइब्रेरी फाइल्स है CSL RTS 6700, ठीक है, DSK C6713 BSL.lib और C6713.lib टू प्रोजेक्ट। ठीक, प्रोजेक्ट, ऐड प्रोजेक्ट फाइल्स और आपके पास जो लोकेशन है वो ये है। अब मैं दोबारा इधर जाता हूँ, इधर से मैं ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट पे आया, मैं यहाँ से C6 उस पर मेन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में आ गया। ठीक है, यहाँ से मैंने आगे C6000 और CG टूल्स में जाना है, तो मैं यहाँ से C6000 में आ गया। ठीक है, यहाँ से मुझे CGT टूल्स में गया, CGT टूल्स में जाने के बाद हमने लिब को ढूंढना है। ठीक है, हमने लिब के अंदर गए, यहाँ से मुझे ऑल फाइल्स कर दिया, तो यहाँ से मुझे RTS 6700 ये फाइल मिल जाएगी। ठीक है, इस लोकेशन से मैंने ये RTS 6700 कर लिया। अगेन मुझे यहाँ से अब दूसरी लाइब्रेरी फाइल ऐड करवानी है। दूसरी लाइब्रेरी फाइल का पाथ जो आएगा वो आपके पास ये है, DSK C6713। अब CG टूल्स में नहीं जाना, अब लिब में जाना है। ठीक है, मैं CG टूल्स पे नहीं जा रहा। ठीक है, C6000 के अंदर आए, C6000 के अंदर DSK C6713 पे आए, DSK C6713 के अंदर अब यहाँ पे ये लिब है, यहाँ से मुझे .bsl C6713 BSL ये मैंने ऐड करवा दिया। अब थर्ड जो आपके पास आती है वो CSL C6713 लिब है और ये आपको इस पाथ पे मिलेगी। C6000 में जाके CSL और फिर लिब में जाना है, तो मैं अगेन यहाँ से ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट में जाता हूँ, C6000 में आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं CSL में आ गया, लिब में आ गया। ठीक है, दोबारा पाथ वेरीफाई करते हैं CSL और लिब के अंदर। अब फाइल कौन सी है? CSL C6713, तो CSL C6713 जो यहाँ पे CSL C6713 मुझे यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। CSL 6713.lib यही है। ठीक है,
CSL6713.lib, इसको ओपन करते हैं तो ये मेरे पास CSL66713.lib ऐड हो गई है। ठीक है, CSL66713। अब ये हमने लाइब्रेरी फाइल सारी कर दी हैं। ठीक है, these are runtime support for C67 architecture and board support for C6713 DSK and chip support for C6713 processor library files। तो ये फाइल्स आपने इन्हीं पाथ से इंक्लूड करवानी है। अब हमने लिंकर कमांड फाइल ऐड करवानी है। ठीक है, ये आपको सपोर्ट के अंदर मिलेगी। ठीक है, C6713 dsk.cmd, तो मैं यहाँ से सपोर्ट के अंदर आ गया। CSL C6713.cmd फाइल है। मैं दोबारा फाइल का नाम C6713 dsk इनिशियलाइजेशन है, डिस्क इनिशियलाइजेशन आ रही है, वेक्टर पोल आ रही है। ये मेरे पास C6713 dsk.cmd कमांड प्रॉम्प्ट फाइल है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इसको ले जाता हूँ और अब यहाँ से मैं इसको ऐड करवाता हूँ। ठीक है, उसी तरह ऐड फाइल्स में लिंकर फाइल .cmd लिंकर फाइल आपने करनी है। इसी तरह हम गए ऐड प्रोजेक्ट फाइल में गए, यहाँ से मैंने अब लिंकर फाइल cmd में चले गए और वो हम लोग चले जाएंगे माय प्रोजेक्ट्स के अंदर, जहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, अब ये C6713 dsk.cmd ये मेरे पास ये ऐड हो गई है। ठीक है, अब हेडर फाइल्स को हमें इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं होती मैनुअली। हम स्कैन ऑल फाइल डिपेंडेंसीज को पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी हेडर फाइल्स खुद ब खुद ऐड हो जाएंगी। इसके लिए मैं प्रोजेक्ट के अंदर गया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे स्कैन ऑल फाइल डिपेंडेंसीज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये इंक्लूड में ऑटोमेटिकली दोनों फाइल्स ऐड हो गई हैं। ठीक है, डिस्क इनिशियलाइजेशन और AIC23 दोबारा देख लें। मैं यहाँ से राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट डिपेंड स्कैन ऑल फाइल्स और प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज पे क्लिक किया तो मेरे पास सारी फाइल्स, ये दोनों फाइल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों को C6713.gel is added automatically when you create the project. It initialization invoking the board support libraries to use the PLL and CPU clock. तो ये ऑटोमेटिकली जेल फाइल इसकी जनरेट हो जाती है। तो अभी जो हमारे पास लुक आनी चाहिए वो इस तरह की आनी चाहिए थी। ठीक है, डॉट लाइब्रेरी, 3 लाइब्रेरी फाइल्स हैं, 3 सोर्स फाइल्स हैं, एक लिंकर फाइल है और ये चीज़ आ रही है। तो मैं इस चीज़ को जाके वेरीफाई कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास ये 2 फाइल्स आ रही हैं। ठीक है, मगर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज में मेरे पास ये 2 फाइल्स ही शो हो रही हैं। मैंने इंक्लूड में ही ये 2 फाइल्स ही रखी हुई हैं तो वो इसलिए ये 2 फाइल्स ही आ रही हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी 3 फाइल्स हैं, 3 सोर्स फाइल्स आ रही हैं और एक, तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट में फाइल्स ऐड से ही हुई हैं। अब हम इन 3 लाइब्रेरीज फाइल्स को और इसको सारे को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये ठीक काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो हम इससे प्रोजेक्ट को बिल्ड करवाते हैं। ठीक है, कोड जनरेटर एंड बिल्ड ऑप्शन। द कोड जनरेशन टूल अंडरलाइंग CCS, that is C compiler, assembler and linker, have a number of options associated with each of them. These options must be set appropriately before attempting to build a project. Once set, these options will stored in the project file. तो पहले सबसे पहले
हम लोगों को ये सारी चीज़ें असेंबलर और कंपाइलर को रन करने के लिए कंपाइलर के ऑप्शन सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, बिल्ड ऑप्शंस में जाएंगे, कंपाइलर के टैब में आ जाते हैं। हम यहाँ से प्रोजेक्ट में जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, बिल्ड ऑप्शंस यहाँ पे भी आ रहे हैं आपके पास, और आप यहाँ से भी आ सकते हो बिल्ड ऑप्शंस पे। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास ये डिपेंडेंसीज की स्कैनिंग का सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बिल्ड ऑप्शन के अंदर गया। ठीक, बिल्ड ऑप्शन के अंदर मेरे पास इस तरह से टैब आ जा, ये सब कुछ खोल रहा है, इसी तरह से मेरे पास खोल रहा है। तो बेसिक कैटेगरी सेट टारगेट वर्जन टू C6710। तो टारगेट आप लोगों को C671X MV C6710 सिलेक्ट करना है। ठीक है, टारगेट यहाँ पे आ गया C671X और MV C6710 को मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इन द एडवांस कैटेगरी सेट मेमोरी मॉडल्स टू फॉर मेमोरी मॉडल डेटा इज इक्वल टू फॉर। ठीक है, अब यहाँ से जब आप एडवांस ऑप्शंस में जाओगे, ठीक है, एडवांस ऑप्शंस में आओगे तो यहाँ पे मेमोरी मॉडल को हम लोगों ने सेट करना है। तो यहाँ से मैं एडवांस पे चला गया, ये मेरे पास मेमोरी मॉडल आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको फॉर मेमोरी मॉडल डेटा इज इक्वल टू फॉर पे सेट कर दिया। ठीक है जी, ये सेट करने के बाद इन प्री प्रोसेसर कैटेगरी सेट प्री डिफाइंड सिंबल्स टू चिप C6713 एंड इंक्लूड द सर्च पाथ दिस एंड क्लिक ओके। ठीक है, यानी जो मेरे पास अब थर्ड आ रही है ऑप्शन, उसमें हम प्री प्रोसेसर पे जाते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर्स पे आ गए, इंक्लूड सर्च पाथ मैंने वहाँ से वो देना है, और प्री डिफाइंड सिंबल में मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ जो पाथ है वो मैं वहीं से ही सर्च पाथ मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और सर्च पाथ में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इस पाथ के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये ख्याल कीजिएगा। C6 स्टूडियो C6000 फिर इंक्लूड, तो सर्च पाथ मेरे पास ये आ गया, और यहाँ पे ये जो प्री डिफाइंड सिंबल है यहाँ पे मैंने लिख दिया है चिप अंडरस्कोर 6713। ठीक है, यहाँ पे चिप अंडरस्कोर 6713 मैंने लिख दिया। तो मेरे पास प्री प्रोसेसर की मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं पिक्चर लगाना उसको भूल गया था, मगर बहरहाल ऑप्शंस हमारे पास ये सेट हो गए हैं। ठीक है, कंपाइलर ऑप्शंस हम लोगों ने ये सेट कर लिए हैं। इस पे ओके क्लिक करते हैं, तो अब आपके पास कंपाइलर ऑप्शन सेट हो गए। कंपाइलर ऑप्शन सेट करने के बाद अब हम लोगों ने लिंकर ऑप्शन सेट करने हैं। ठीक है, लिंकर ऑप्शन सेट करने के लिए लिंकर के टैब पे जाएंगे, उसी तरह बिल्ड ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे लिंकर के टैब में आ जाएंगे। लिंकर के टैब में जाते हैं, प्रोजेक्ट, बिल्ड ऑप्शंस, कंपाइलर के ऑप्शन सारे चेक कर लें कि वही उसी तरह सारा कुछ सेट है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्री प्रोसेसर में चिप फोल्डर आ गया, जो एडवांस में हम लोगों ने मेमोरी मॉडल सेट किया था वो, और ये हम लिंकर के ऑप्शन में आ गए। ठीक है, आ गया लिंकर के ऑप्शन में। अब आप लोगों को आउटपुट फाइल नेम शुड बी डिफॉल्ट टू डिबग / ये सेट करनी है। तो इसको हम लोग जाके उसी तरह
बिल्ड ऑप्शंस में लिंक करके उसमें जाके ये फाइल सेट करते हैं कि आपके पास आउटपुट फाइल का नाम ये होना चाहिए, तो वो आउटपुट फाइल नेम ऑटोमेटिकली यही आ रहा है। ठीक है, नीचे मैप फाइल डॉट मैप भी यही बन रही है और रन टाइम ऑथराइजेशन ही हम लोगों को करनी है। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस इसी तरह आएंगी। और ये सेट लाइब्रेरी सर्च पाथ टू दिस, तो लाइब्रेरी सर्च पाथ को हम लोगों को इसको करना है। ठीक है, auto initialization model should be default to run time auto initialization model should be default to run। ठीक है, वो तो डिफॉल्ट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरी सर्च पाथ ये आ रहा है, तो लाइब्रेरी सर्च पाथ में दोबारा जिसमें स्पेस का ख्याल कीजिएगा कि अगर आप कॉपी करेंगे तो फिर इनमें जो स्पेस है उसको आपने लास्ट में क्लियर करना है। ठीक है, लाइब्रेरीज RTS ये सारी लाइब्रेरी सर्च फाइल वहाँ से हो रही है। मैप फाइल कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिबगिंग मेमोरी लोकेशन ऑफ फॉर्म। अच्छा, अगर मैंने ये मेरे फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं तो फिर मुझे ये पाथ इस तरह से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसी जिस फोल्डर के अंदर मेरी सोर्स फाइल्स हैं उसी फोल्डर्स के अंदर से मेरे पास लाइब्रेरीज ऐड हुई हुई हैं, तो ये फिर मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी उसके अंदर ऐड हुई होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने सेट करने के बाद ओके कर दिया। ठीक है, मैप फाइल -c ऑप्शन इज यूज्ड टू इनिशियलाइज वेरिएबल एट रन टाइम एंड -o ऑप्शन इज यूज्ड टू नेम द लिंक्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट आउट। अच्छा, अब बिल्डिंग डाउनलोडिंग एंड रनिंग प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट को हमने बिल्ड करना है, डाउनलोड कैसे करेंगे और फिर रन कैसे करेंगे इस पे देखते हैं। तो प्रोजेक्ट साइन 8 कैन नाउ बी बिल्ट एंड एग्जीक्यूटेबल एंड डाउनलोडेड टू दिस। ये सारे ऑप्शन सेट करने के बाद हमने इसको बिल्ड करना है। हम प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे और रीबिल्ड ऑल के ऊपर प्रेस करते हैं। प्रोजेक्ट या तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास ये बिल्ड की ऑप्शन आ रही है, तो मैं प्रोजेक्ट रीबिल्ड ऑल पे जाता हूँ। तो अभी ओके जी, एरर क्या आ रहे हैं? मेरे पास दो एरर आ रहे हैं। एक तो ये डिस्क इनिशियलाइजेशन डॉट सी का एरर आ रहा है, यहाँ पे ये जो मैंने पाथ दिया था उसके अंदर ये स्पेस आ रही है। तो मैं अगेन प्रोजेक्ट यहाँ से बिल्ड ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ। मैं ये जो ऊपर पाथ में ये स्पेस थी इसको ख़त्म करना है, और यहाँ से दोबारा मैं प्री प्रोसेसर में अगर जाके देखूँगा, प्री प्रोसेसर में भी वो स्पेस ख़त्म हो गई है। ठीक है, एडवांस में तो मेमोरी मॉडल्स किए थे। ओके, दोबारा प्रोजेक्ट को रीबिल्ड ऑल करके देखते हैं। ठीक है जी, अब पहले दो एरर्स थे, अब एक एरर एक वार्निंग आ रही है। एरर ये आ रहा है कि fatal error could not open source file disk initialization .h। तो वही जो असेंबलर में हमने पाथ सेट किया था वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आई हुई है। तो हम लोग ने चूँकि ये फाइल्स वहाँ पे कॉपी की हुई हैं तो हम ये पाथ यहाँ से रिमूव भी कर दें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं एडवांस में मेमोरी प्री प्रोसेसर में मैं यहाँ से इस पाथ को भी
डिलीट करता हूँ और लिंकर में जाके ये जो सर्च पाथ है ये भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, डॉट डिबग ये सारा कुछ तो वो उधर ही आ जाएगा। ओके, अब प्रोजेक्ट को रीबिल्ड ऑल करके देखते हैं। दो एरर्स दिखा रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हेडर फाइल्स है वो इसको नहीं मिल रही हैं। मैं हेडर फाइल्स पे चाहता हूँ तो ये इसको हेडर फाइल्स नहीं मिल रही है। ठीक है, इन हेडर फाइल्स को मैं मैन्युअली इंक्लूड करवा लेता हूँ। तो हेडर फाइल्स जो हम लोगों को मिलती हैं वो C67 के, इसी तरह C6000 के फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे DSK इंक्लूड और ये DSK C6713 ये ऐसी डेप और ये सारी मैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा देता हूँ। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, और अब मेरे पास अगेन ये हेडर फाइल इसको मिल नहीं रही है। एक मिनट में हेडर फाइल्स, अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड हो गई हैं सारी। ये रिमूव फ्रॉम प्रोजेक्ट, रिमूव फ्रॉम प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज आ रही हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली ये होना नहीं चाहिए। एक मिनट में इसको ज़रा फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। इसको ये फाइल्स हेडर फाइल्स ये स्कैन तो कर रहा है मगर इसको ये हेडर फाइल्स मिल नहीं रही हैं। अगेन मैंने इसको यहाँ से बिल्ड ऑप्शन सारा कुछ, प्रोजेक्ट शो प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, नो प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी हैव बीन एडेड टू द प्रोजेक्ट। ओके जी, स्कैन फॉर ऑल डिपेंडेंसीज को स्कैन कर रहा है मगर इनको ये फाइल्स मिल नहीं रही हैं। ज़रा इसको मैनुअली हम जाके चेक करते हैं कि ये इंक्लूड फाइल्स क्यों नहीं हो रही हैं। मैं यहाँ से अगेन C6000 के अंदर जाता हूँ, DSK यहाँ पे इंक्लूड में DSK C6713 है। C6713 डिस्क इनिशियलाइजेशन भी, अच्छा यहाँ पे वो इंक्लूड की हेडर फाइल्स नहीं है। ठीक है, ये हेडर फाइल्स भी होनी तो चाहिए थी मगर आई डोंट नो कि शायद इंस्टॉलेशन में कोई इश्यू आ गया था। RTDX है, CSL VSL आ रही है और बायोस की सारी आ रही है। बहरहाल कोई इसमें इशू नहीं है। मैं ये जो हेडर फाइल्स है ये भी डाउनलोड हो सकती है, कोई इतना इशू नहीं है। तो मैं ये हेडर फाइल्स भी सारी आप लोगों के साथ, अच्छा बेहतर है कि जिन फाइल्स का एरर आ रहा है मैं इन फाइल्स को मैन्युअली अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर कॉपी कर दूं। ठीक है, ये DSK C6713.h का आ रहा है। तो ये जो DSK C6713.h है, मैं यहाँ से कोड कंपोजर C6000 यहाँ पे DSK इंक्लूड, ये जो सारी मेरे पास हेडर फाइल्स है मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और
क्योंकि मैं कोई पाथ वगैरह सेट नहीं कर रहा, इसीलिए मैं इनको अपनी करंट फोल्डर जहाँ पे मेरी ये प्रोजेक्ट फाइल है, मैं यहाँ पे ये सारी कॉपीज फाइल्स को यहाँ पे सारी कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। और मैं अगेन यहाँ से स्कैन फॉर डिपेंडेंसीज करके प्रोजेक्ट को रीबिल्ड ऑल करते हैं। तो अब फिर एक C6713.h का एरर आ रहा है, C67 DSK 6713.h। तो इसको देखते हैं सपोर्ट में। C6713.h नहीं, सपोर्ट में नहीं है। ये मेरे पास इधर साइन में डिप है, DSK C6713.h मेरे पास आ रही है। तो आई थिंक इस हेडर फाइल में कोई प्रॉब्लम है। तो ये हेडर फाइल जो है मैं अगेन उधर अपने फोल्डर से कॉपी कर लेता हूँ। ये सपोर्ट के फोल्डर में जो जितनी भी हेडर फाइल्स हैं, इन सारी एच फाइल्स को मैं अपने मेन प्रोजेक्ट में कॉपी कर रहा हूँ। और अब इसको करके देखते हैं। यस, रीलोड कर रहा है। अब रीलोड करके अब हम इस प्रोजेक्ट को रीबिल्ड ऑल करके देखते हैं कि ओके जी, ठीक है। अब मेरे पास इसको अगर मैं फुल स्क्रीन पे लेके जाऊँ तो अब मेरे पास जब मैंने सारी हेडर फाइल्स करंट फोल्डर में दे दी रख दी हैं, सपोर्ट का मैं आप लोगों के साथ ऑब्वियसली फाइल्स शेयर करूँगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो बिल्ड, ज़ीरो एरर, कंप्लीटली प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया। इसमें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अब हम अपने मैनुअल की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब ये सारा कुछ करने के बाद हम लोगों को कोड रीबिल्ड कर लिया हम लोगों ने। तो अब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स आ रही हैं। अब हमने इनको जो led.out हमारे पास डीबग की जो मेरा करंट प्रोजेक्ट फोल्डर है, ठीक है, अगर उसमें मैं जाऊं तो मेरे पास यहाँ ये डीबग का एक फोल्डर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये .out फाइल आ रही है। ये .out फाइल जो है ये हम लोग DSP किट के ऊपर लोड करते हैं, ठीक है। लोड प्रोग्राम फाइल, लोड प्रोग्राम led.out, इट शुड बी स्टोर्ड इन डिबग फोल्डर। ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद डिबग रन जैसे ही हम करेंगे तो आपके पास ये फाइल आपकी DSP किट अगर अटैच होगी तो आपके पास ये फाइल चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ, फाइल के अंदर गया हूँ, ठीक है, लोड सिंबल, लोड प्रोग्राम के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। लोड प्रोग्राम के अंदर वहाँ से डॉट, जब मेरे पास किट कनेक्टेड होगी तो ये ऑप्शन मेरे पास इसी तरह आ रही होगी। तो मैं लोड प्रोग्राम के अंदर .led.out को लोड करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से जाके इसको रन कर सकूँगा, ठीक है। डिबग में जाके रन करेंगे तो हमारे पास DSP किट के ऊपर, अगर ये क्योंकि मेरे पास किट नहीं है तो ये नहीं कनेक्ट हो रही। तो इस तरह से हम लोग एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं DSP किट कोड कंपोजर स्टूडियो के ऊपर।
एक प्रोजेक्ट बना के उसको DSP किट के ऊपर लोड कर सकते हैं और फिर उसको हम रन कर सकते हैं। इसी तरह फिर मुख्तलिफ एडिटिंग है आपके पास, ठीक है। अगर इस तरह एरर आ रहा हो, एरर एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ लाइन, ये एरर्स आ रहे हैं, ये हॉल्ट एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो रहा है, ये एरर्स के अंदर कौन किस तरह के एरर्स आ रहे हैं उसके बारे में है। वॉच विंडो आपके पास आ रही होती है, जब ये चल रहा होता है तो हम इस वॉच विंडो के अंदर हम वो ये सारी चीज़ें, इसके वोल्ट्स कितने हैं ले रहा है, क्या गेन वैल्यू क्या है, ये सारे कुछ आ रहे हैं। स्लाइडर जेल को हम यूज़ कर सकते हैं। स्लाइडर जेल को यूज़ करने के लिए आपको ये कोड ऐड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का जेल आ रहा है, स्लाइडर आ जाता है, इससे आप अप डाउन कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज से 16 किलोहर्ट्ज करनी हो तो आप इसी तरह इस लाइन को इस लाइन से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास 16 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। लूप लेंथ आपने चेंज करनी हो या लूप के नंबर चेंज करने हो, इस तरह से आप मुख्तलिफ कर सकते हैं। जो एग्जांपल 2 है, जनरेशन ऑफ साइनोसाइड एंड प्लॉटिंग विद CS साइन 8 बफ। साइन 8 बफ आपके पास ये गिवन है, ठीक है। इस फाइल को आपने सोर्स फाइल रखना है। उसी तरह हम लोगों ने अब पोलिंग दी इंटरप्ट बेस्ड मेथड है, तो C-int11 इस रूटीन को आपने देखना है, ठीक है। ये जो फाइल्स आपको बताई हुई हैं, ये सारी फाइल्स आपने ऐड करनी है। उसी तरह ऑप्शंस को सेट करके इस फाइल को रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट पे इस तरह से फाइल आ रही होगी। और ये फाइल आप ग्राफिकल विंडो में आपको दिखा भी देता है, मगर इसके लिए देखने के लिए आपके पास अगेन DSP किट का कनेक्ट होना साथ ज़रूरी है। और जो थर्ड वेरिएबल वॉच भी इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और जो थर्ड कोड है वो भी इसी तरह आपके पास सोर्स फाइल है। तो ओवरऑल इस लैब का जो मकसद था वो ये था कि कैसे आप कोड कंपोजर स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। कैसे आप उसमें सोर्स फाइल को ऐड करेंगे, कैसे आप उसमें बाकी सपोर्टिंग फाइल्स को ऐड करेंगे, कैसे आप लोग ने बाकी फाइल्स को ऐड करके एक प्रोजेक्ट को बना के कैसे उसको बिल्ड करना और कैसे उसको रन करना है। अगर आपके पास इस तरह यह बिल्ड हो गया और कोई इसमें एरर नहीं है तो इट मीन्स के ये किट के ऊपर भी बिल्कुल DSP किट के ऊपर भी ये बिल्कुल ठीक चलेगा। इस तरह मल्टीपल कोड्स आपके पास हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो आज की लैब का जो मकसद था वो यही था कि हम एक कोड कंपोजर स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट बना के उस पर काम कर रहे हैं और उस पर देखें कैसे प्रोजेक्ट बनता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर के सेशन में उसको देख लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।